A money bill is one which deals with any of the following matters only. Is first the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax. Second, the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the government of India or the amendment of the law with respect to any financial obligation undertaken by the government of India. Third, the custody of the consolidated fund or the contingency fund of India with payment of monies into or the withdrawal of monies from any such fund. Fourth, the appropriation of monies out of the consolidated fund of India. Fifth, the declaring of any expenditure to be expenditure charge on the consolidated fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure. Sixth, the receipt of money on account of consolidated fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the union or of the state. Seventh, any matter incidental to any of the matters mentioned in clauses above. So in journal it talks about everything related to the fund. It may be tax, it may be any financial provision in respect of any subject matter. Maybe it is railway, if it is related to financial matter, then it is a money bill. If it is talks about budget for certain some kind of subject matter of union, then it is a money bill. So money bill is not limited; it is very vast. So the definition will depend what the parliament going to introduce, what kind of bill is it. So on the nature of that bill, it will depend whether such bill is money bill or not. So first one is it talks about the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. Now tax provision पहले ऐसा था, there was direct indirect tax and डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बाद अभी वैट आ गया, ये सॉरी जीएसटी आ गया, वैट था और अलग अलग तरह के टैक्सेस थे, अभी सबको निकाल के जीएसटी कॉमन जीएसटी लाया गया. तो ऐसे उसमें कोई भी चेंज करना हो या डायरेक्ट टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्स में अगर कोई भी चेंजेस करना होता हो तो ये प्रोविजन के अंडर में आता है. सेकेंड वन इज टॉक्स अबाउट द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ guarantee by the government of India or the amendment of the law with respect to any financial obligation undertaken by the government of India. Now what is financial obligation? मतलब कोई प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंप्लीट करना है, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट हो गया, फिर बुलेट ट्रेन हो गया. मेट्रो प्रोजेक्ट तो स्टेट का है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो गया. It is undertaken by the government of India. तो ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजन चाहिए या स्पेशल फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या गवर्नमेंट फंड में से फंड चाहिए, तो ऐसी चीजों को रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल 2 के अंडर में लॉ बनाया जा सकता है. Now the third one, the custody of consolidated fund or the contingency fund of India, the payment of money into the withdrawal of monies from any such fund. So it talks about the consolidated fund. Consolidated fund क्या होता है, बता सकता है क्या? Consolidated fund is like ये गवर्नमेंट का फंड रहता है जो लाइक एक फिक्स अमाउंट रहता है जो एवरी ईयर मतलब उनको दिखाना पड़ता है कि ये इतने अमाउंट का हम लोग के पास अभी ये साल में कंसोलिडेटेड फंड है. Okay. Anyone else want to try? Sir, consolidated fund means the total fund available for budgeted with the central government for that certain activities. Okay. All going? It's a reserve fund with the government.
Okay. So it is created under Article 266. If you want to know about the consolidated fund, you have to go to Article 266. You will come to know what is consolidated fund और उसके अगेंस्ट रिलेटेड लॉ कैसे बन सकते हैं. तो कंसोलिडेटेड फंड ऐसा फंड होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, अदर ये जो रेवेन्यू सब जगह से कलेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर बजट रिजर्व करके रखते हैं कि ये इसमें से हम यूटिलाइज करेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सपेंडिचर रहेगा उनका, या अलग अलग उनके टारगेट रहेगा या फाइनेंशियल बजट रहेगा. तो उस हिसाब से वो फंड के अंदर से रिलीज होता है अमाउंट. हर फंड अलग होता है, रिलीफ फंड अलग होता है, कंसोलिडेटेड फंड अलग होता है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फंड होते हैं. इन जनरल कंसोलिडेटेड फंड अगर आपको जानना है तो 266 आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें क्या प्रोविजन है, किस तरीके से बना सकते हैं, कौन सा लॉ हो सकता है, आपको पता चल जाएगा. Now the third one is talks about the appropriation of money. Now what is the meaning of appropriation of money? Spending of money, sir. It is spending of money from consolidated fund. तो इससे रिलेटेड लॉ, इससे रिलेटेड जो लॉ होंगे वो ये आर्टिकल्स के अंडर में बनेंगे. तो इन जनरल ये डायरेक्टली जितने भी मनी से रिलेटेड मैटर्स है, पैसे से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, ये सब्जेक्ट मैटर अगर ये इसमें से कोई भी एक पे फॉल होता है तो उसको मनी बिल बोला जाएगा. अगर कोई भी बिल, कोई भी लॉ ऐसा लॉ है जो ये 7 टॉपिक है, 7 सब्जेक्ट मैटर्स है, इस 7 में से किसी एक में भी फॉल होता है तो उसको मनी बिल बोला जाएगा. अगर मनी बिल अगर किसी एक में भी फॉल नहीं होता तो उसको मनी बिल नहीं बोला जाएगा. तो उसको इन जनरल जो नॉर्मल बिल्स होते हैं, जो लॉ पास होते हैं, उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, आगे बढ़े. गग्गू रीड. Yes, sir. कंसोलिडेटेड जो फंड है वो प्रेसिडेंट के अंडर ही आता है ना. लाइक इफ समबडी वांट्स टू, लाइक अभी ये जो भी एक्सपेंसेस है तो वो प्रेसिडेंट को दे हैव टू शो द समथिंग लाइक प्रूफ कि हम लोग को कंसोलिडेटेड फंड में से फंड चाहिए. लाइक कोई भी रीजन नॉर्मली मतलब मैंने ऐसे पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को ही हक रहता है कि उस फंड को अलॉट करे. अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है? पीएम के पास. पीएम के पास. कौन बोल रहा है? आपका नाम बोलिए. सूरज जी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है. किसने बोला आरबीआई? शरफ सुरेश. दोनों सुरेश, सूरज और सुरेश. एस और कोई? इंडिया का एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. कोई भी फंड रहेगा तो उसको रिलीज करने के लिए एग्जीक्यूटिव का साइन चाहिए रहता है. कोई भी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, तो प्रेसिडेंट उसका अथॉरिटी होता है. उसमें जनरल प्रोविजंस होते हैं लेकिन उसमें प्रेसिडेंट अथॉरिटी होता है. तो कोई भी चीज करने से पहले प्रेसिडेंट की सिग्नेचर जरूरी होती है. तो ऐसी चीजों पे जहाँ पे ये लगे, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर लगे, उसमें एग्जीक्यूटिव वर्क बोला जाता है. तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी फंड रिलीज करना होगा तो प्रेसिडेंट की असेंट लगता ही होगा, और वो असेंट लगने को ही एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं. ठीक है, इसमें मैंने पढ़ा नहीं, फिर भी हम, अगर आपको डाउट है तो हम एक बार गो थ्रू करेंगे. मैं भी गेट करूंगा अगर मुझे. बोलिए ना सर. डायरेक्ट प्रेसिडेंट करता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड करती है उनके बिहाफ में? कि प्रोविजन 267 में एक बार था कि 500 कॉर्पस फंड का ये मोस्टली 500 करोड़ का होता है, एंड द सेक्रेटरी एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड द फंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जस्ट आस्किंग सर. होल्डिंग द फंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना? या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. यस. हाँ, लेकिन किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है? पावर किसके पास है? राइट. वो तो प्रेसिडेंट का ही है. होल्ड करने में अलग चीज होता है और रिलीज करना अलग चीज होता है. जी, मैंने आपको इतना पैसे दिए हैं, आप तभी यूटिलाइज करोगे कि जब मैं डायरेक्शन दूंगा. अगर उसमें ऐसा कि डिस्क्रिशनरी पावर है कि प्रेसिडेंट का, अगर उसके अंदर में जो लॉ बना है वो लॉ ऐसा बोलता है कि नहीं,
मिनिस्ट्री के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर सकती है, तो फिर ठीक है। ओके सर। हाँ, लेकिन अगर उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि मिनिस्ट्री के पास पावर नहीं है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट का कंसेंट असेंट लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम इसका लॉ देखेंगे, मैं एक बार गो थ्रू करूंगा, मैंने लॉ देखा नहीं एक्चुअली, इसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, हम एक बार गो थ्रू करेंगे, आप ये पहले जो सिलेबस है वो कवर कर दे, कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग बाद में भी कर सकते। कल भी मैं इसको एक बार ले लूंगा, जो आपका डाउट है कि कौन रिलीज करता है, किसके पास पावर है, तो लॉ देख के मैं बताऊंगा किस लॉ के अंडर में कैसे आता है। ठीक है, ओके सर। आगे। यस जग्गू। Special procedure in respect of money bills. A bill or amendment making provision for any of the matters specified in clause 1 to 6 above cannot be introduced or moved except on the recommendation of the President, and a bill making such provision cannot be introduced in the Council of State. Article 117. In respect of money bills, a bill or amendment making provisions for any of the matters specified in clauses 1 to 6 above cannot be introduced or moved except on the recommendation of the President, and a bill making such provision cannot be introduced in the Council of States. The three important steps. एक मिनट, इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन होने पे ही ये फाइनेंशियल मनी बिल है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन उसको आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट ये है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड वन है इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। नाउ सी द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट। The three important steps in the laid down in Articles 109 and 110 as under. First, a money bill cannot be introduced in the Council of States. Second, after a money bill has been passed by the House of People. एक मिनट। तो पहला जो हमने बोला था कि ये स्टेट यानी राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये खाली इसको पावर, ये एक लौता बिल है जिसको राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। बाकी कोई भी बिल हो, कोई भी किसी तरीके का बिल हो, उसको राज्यसभा इंट्रोड्यूस कर सकता है। मनी बिल एक लौता बिल है कि जो लोकसभा पास करेगा तो भी पास हो जाता है, बोथ हाउस से इसका कंसेंट नहीं लगता है। बाकी किसी भी तरीके के बिल हो उसको बोथ हाउस का कंसेंट लगता है। ठीक है, Yes, sir. चलो। यस, सेकंड पॉइंट। After a money bill has been passed by the House of the People, it must be transmitted to the Council of States for its recommendations. The Council of States must, within 40 days from the date of its receipt of the bill, return the bill to the House of the People with its recommendations, and the House of the People may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Council of States. If, however, it is not so returned, it is to be deemed to have been passed by both the houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the House of People. now इसमें क्या बोला है कि इसमें ऐसा बोला गया है कि जो भी मनी बिल होता है वो पास करने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को खाली उसके ऊपर रिकमेंडेशन देना होता है। कितने दिन के अंदर रिकमेंडेशन देना होता है? विद इन 14 डेज। 14 डेज में रिकमेंडेशन देना होता है। उस पे भी ऐसा है कि उन्होंने रिकमेंडेशन दिया तो ऐसा कंपलसरी नहीं, इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द लोकसभा कि वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे या नहीं करे। ये डिस्क्रिशनरी पावर है लोकसभा का कि वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे या नहीं करे। इट इज नॉट मैंडेटरी कि रिकमेंडेशन दिया है तो इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। However, if it is not written, it is to be deemed to be have been passed by both houses at the expiration of the period in the form in which it was passed by House of the People. यानी अगर उसने वहां से रिकमेंडेशन या कोई जवाब नहीं आया तो ऐसा माना जाएगा कि ये बिल हाउस ऑफ द पीपल की तरफ से पास कर दिया गया।
राज्यसभा की तरफ से राज्यसभा का रिकमेंडेशन नहीं, राज्यसभा के रिकमेंडेशन का जिक्र नहीं होगा, खाली लोकसभा की तरफ से पास कर दिया गया ऐसा समझ के बिल पास हो जाएगा। नाउ सी द थर्ड पॉइंट। Third, if the House of People accepts any of the recommendations of the Council of States, the money bill is deemed to have been passed by both houses with the amendments recommended by the Council of States and accepted by the House of the People. If, however, the House of the People does not accept any of the recommendations of the Council of the States, the money bill is deemed to have been passed by both the houses in the form in which it was passed by the House of People, without any of the amendments recommended by the Council of the States. Yes. The recommendations done by the other house is accepted by the Lok Sabha, then it is deemed that it is passed by both the house. It is accepted and passed by both the house. और उनका रिकमेंडेशन अगर नहीं भी एक्सेप्ट किया, इट इज स्टिल डीम्ड दैट इट इज बीन एक्सेप्टेड एंड पास्ड बाय बोथ द हाउस। हाँ, सी इसमें एक पॉइंट आप ऐड करना भूल गए। अगर एक्सेप्टेड बाय पास बाय बोथ द हाउस विद द रिकमेंडेशन आएगा, विद द रिकमेंडेशन ऑफ रिकमेंडेशन। हाँ, और सेकंड में ऐसा आएगा विदाउट द रिकमेंडेशन। विदाउट द रिकमेंडेशन। दिस रेफर हाँ, यस यस बोलिए। It refers to amendments recommended. With the amendment, that is the recommendation or amendment, what you can say. Maybe the proper term is amendment. जो recommendation है, अगर हम उसको change कर दे, तो in general क्या होता है कि जो recommendation है, अगर आप existing law में उसको change करेंगे, उसको in general term में amendment ही बोला जाता है। अगर as it is आपने accept कर लिया तो there will be no amendment, लेकिन आप कोई भी alteration, modification करते हैं तो उसको अमेंडमेंट बोला जाता है। वो कितना भी छोटा हो उसको अमेंडमेंट ही टर्म है। फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, नया सेंटेंस ऐड करना हो, कोई वर्ड डालना हो बीच में, लास्ट में कोई वर्ड डालना हो, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन में कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट देना हो, कोई भी तरीके का अगर आप उसमें इनपुट देते हैं तो इट्स अमाउंट टू रिकमेंडेशन, इट्स अमाउंट टू अमेंडमेंट। ठीक है, यस, चल आगे बढ़। General procedure regarding President's assent to bills. A bill does not become law unless and until the President assents to it. In other words, a bill will not become an act of the Indian Parliament until it receives the assent of the President. When a bill is presented to the President after its passage in both the houses of Parliament, the President is entitled to take any of the following three steps. First, he may declare his assent to the bill, or second, he may declare that he withholds his assent to the bill, or third, he may, in the case of bills other than money bills, return the bill for reconsideration of the houses with or without a message suggesting amendments. Yes. ठीक है, फर्स्ट वन इज लाइक डायरेक्टली असेंट देगा, थर्ड और सेकंड वन है कि वो होल्ड करके रखेगा, बिल को पास नहीं करेगा। थर्ड वन है कि पास करने के से पहले अगर उसमें लगता है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन अल्टरेशन की जरूरत है तो वो सजेशन देगा। जैसे कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव होता है, और यही नहीं कि कोई भी बिल हो, फाइनेंशियल बिल हो या फिर मनी बिल हो या कोई अमेंडमेंट हो, क्रिमिनल प्रोविजन का कोई बिल हो, कोई भी बिल हो, वो तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक उस पर प्रेसिडेंट का असेंट नहीं होता। और प्रेसिडेंट असेंट देने से पहले लॉ को देखता है, बिल को देखता है, और बिल देखने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ सब सही है तो वो असेंट देगा। लेकिन उसको लगता है नहीं इसमें ये चीज ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, या ये रिकमेंड करेगा कि नहीं ये चीज ऐसे करो, तो अपना रिकमेंडेशन दे सकता है। उसके बाद अगर उसने असेंट नहीं दिया तो उसके बाद वापस से हाउस में जाता है और वापस से वो बिल को मॉडिफाई किया जाता है एज पर द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। फिर उसके बाद वापस से प्रेसिडेंट के पास आता है और उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर असेंट देता है, तो वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है तो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सी द केस इन केस
of third. When a bill has been passed by the Houses of Parliament, it is to be presented to the President, and the President must declare either that the assent to the bill or that he withhold assent therefrom. The President may, however, return the bill, if it not a money bill, to the Houses with a message requesting that they reconsider the bill and in particular consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in message, and when a bill is so returned, the Houses must reconsider the bill accordingly. If such a bill is passed again by the Houses with or without amendment and presented to the President for assent, the President cannot withhold assent therefrom. The above provision. एक मिनट को अटेम्प्ट करना चाहिए क्या इसको? Yes, sir. Sir, it clearly mentions, first of all, the President can return the bill except only if it is not a money bill. Now, and he can understand that there are recommendations to it, and he has put forth recommendations to the House, both the Houses. Now, this is now the House can take these amendments or refuse the amendments as far as the President's assent is concerned. Now, after the House of this Lok Sabha and Rajya Sabha rediscuss them and decide to drop off any amendment or decide to send it same as it is, bypassing the President, then it becomes obligatory on the President to assent to this particular bill that is there. He cannot withhold the bill. Yes, sir. Okay, चलो ठीक है. और लास्ट पॉइंट है पॉकेट वेटो ऑफ द प्रेसिडेंट. रीड पॉकेट वेटो. उस दिन बात कर रहे था वेटो पावर. Yes, sir. Pocket veto of the President. It may be noted that Article 111 does not prescribe any time limit within which the President has to declare his assent or refusal or to return a bill. He may thus indefinitely postpone a bill. By this, he would be able to exercise something like a pocket veto by simply postponing it indefinitely. In other words, the President has a delaying veto under the Indian Constitution. This also very clearly means that it's on the veto, that is the power of the President whether to keep the bill, discard the bill or postpone the bill. So there is no time limit that is given for the President. So that is why it is known as a delaying veto under the Indian Constitution. Okay. Yes, anyone else want to attempt it? Some modification? The President has the power. President has the power to hold the bill, and it can be up to undefined period. No, without questions asked. Okay. See, what is the meaning of veto? Veto means कि ऐसा power कि जो legislation के कोई भी action के ऊपर effect करे, यानी उसको implement करना है, नहीं करना है, assent देना है, नहीं करना है, it's amount to veto power. It's kind of called as the veto power. तो वो power president के power pass होता है under Indian Constitution. जैसे कि विपिन सर ने भी पता और नाथ सर ने भी पता है. तो ये आपको मनी बिल 12 मार्क का यानी सिर्फ शॉर्ट टर्म में आता है. आपको अगर आपने ये जनरल प्रोसीजर तक असेंट तक आपने लिख दिया, दैट इज सफिशिएंट. वेटो इज नॉट इंक्लूडेड. तो आपको खाली जनरल नॉलेज के लिए वेटो ओके, और या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो, अदरवाइज आपने वहां तक किया तो हो जाएगा. तो आज के लिए इतना ही. कल हम वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल, द यूनियन जुडिशरी.